औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum to all. We welcome you on today's webinar of ISA 222. I would like to request that my conversation would be in Urdu as well as English, because we have some other people who are from other countries and they would also like to participate in the time. So the scheme of this webinar would be that first of all we'll give you the introduction and then give you the scheme of the presentation. After explaining what we have to share with you, we'll invite the questions. आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आप सबके लिए हम इधर आज वेबिनार अरेंज करके बैठे हैं और आपको हम इस पे जो इन्फॉर्मेशन है वो बताएंगे एंड आफ्टर दैट आपके क्वेश्चन आंसर इनवाइट करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तानी लोग भी हैं और कुछ फॉरेनर्स भी हैं, इसलिए इंग्लिश और उर्दू दोनों मोड में उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें भी साथ आप एक्सप्लेन करें, तो हम दोनों मोड्स में बात करेंगे। सो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें और आगे चलें, आई वेलकम यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद याहिया कुरैशी है और आई एम पार्ट ऑफ ISA एंड विद अस इज मिस्टर हमजा, ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ISA एंड आई वुड लाइक कि वो पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें एंड देन विल गो फॉरवर्ड। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमजा रब्बानी है और आई एम ए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल विद ओवर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, और मैं इस साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अब तक काम कर चुका हूँ, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। इस फील्ड के अंदर मेरे पास तकरीबन 7 के करीब सर्टिफिकेशंस हैं, जिसके अंदर जो मेजर गवर्नमेंट लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन जैसे कि OSCP, ECPPT, CHFI, CEH, EMAP, CRTP शामिल हैं। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस पूरे सेशन के अंदर हम लोग आपको काफ़ी डिटेल में बताएंगे कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी जो हम करने जा रहे हैं ये इसका क्या मोड होगा, इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे और क्या क्या पढ़ाएंगे और क्या क्या बताएंगे। ओवर टू यू याहिया सर। मेरा ताल्लुक IT से भी है। आई एम IT प्रोफेशनल एज वेल एज आई एम अ डिवर्स पर्सन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी एंड डिफरेंट अदर थिंग्स। आई एम इन मैनी थिंग्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट जो मुझे अच्छा लगता है, एंड ऑफ कोर्स आई एम इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑल्सो। एंड साइकोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला फिर साइकोलॉजी ही हैज़ टू नो, उसको पता होना चाहिए। I am presently the CEO, one of the CEOs of ISA. We have operational CEO and we have administration CEO. And to move forward, I would like to give you an outline of the webinar which we will follow. I'll share the screen and you can see that, okay, what will be the sequence of the information given to you. The aim of the webinar will provide a guideline, information to technical and non-technical audience to better understand what is cyber security, what is ethical hacking, and how can we choose that as a career, and followed by an introduction to what is ISA Pakistan, and then how to get started with ISA. With this brief introduction, we will come to the important, I'll give you the simple difference between information security and cyber security. होता यूँ है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी आम तौर पे एक ही चीज़ समझे जाते हैं, whereas they are not. So आगे चल के हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे एक नहीं है, then some importance and scope of this, current deficiencies
and career opportunities in Pakistan, world as well as Pakistan. And then introduce ISE, what kind of career stages we have, the amateur, professional, executive, the career pathways available. We have 3 pathways: defensive security, offensive security, digital, fraud and forensics. Then in each pathway we have different proficiency levels: awareness level, beginner level, intermediate level, advanced level, specialist and expert level. So then we'll come on to the webinar detailed outline of courses. So in that, the current course which we are running, and gradually we are going to increase upon the other upcoming courses. What is the admission criteria? Knowledge and training. What is the mode of education? What is the percentage of theory and practical? How do we assess in different stages the candidates जो हमारे पास पढ़ते हैं, वो कहाँ तक proficiency and in skills उन्होंने grant कर ली हैं, they have obtained that before awarding the final certification. Then we'll come on to some future plans which are in process on the way. It includes that our students or our candidates, they should know about what is research and conferences. They should know how to make a research question, conduct a research paper, research and publish a research paper. Then we are also working on hybrid mode. उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि हम इंटरेक्टिव LMS की तरफ जाएंगे, जिसमें कि लाइव क्लासेस होंगी, एंड ऑफ कोर्स जो रिमोट एरियाज़ के लोग हैं, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन. एंड ऑफ कोर्स उसकी जो प्रैक्टिकल स्किल्स है, दे विल बी ऑन कैंपस. ISE magazine and ISE forums, competitions, alumni, of course we are also working on that, and we are going to include that in our assets. So after that we'll have question answers, and we would also love, हम ये भी question answers के बाद आपसे ये ज़रूर तवक्को करें, हमारी तवक्को है कि आप हमें you'll critique us and give us suggestions also. They are welcome, because as you will critique from your point of view, आपकी suggestions हमें help out करेंगी, and of course we'll improve ourselves. So अब यहाँ से आगे हम शुरू करते हैं. सबसे पहले what is information security and cyber security? Information security and cyber security are very wrongly interpreted and known as synonyms of each other. ये एक चीज़ नहीं है. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी एक चीज़ नहीं है. वेरी सिंपल एग्जांपल, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ द फादर एंड वन ऑफ द सन इज साइबर सिक्योरिटी. यानी बाप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है और बेटा साइबर सिक्योरिटी. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंक्लूड्स एवरीथिंग अबाउट इंफॉर्मेशन. अच्छा, इंफॉर्मेशन क्या है, पहले इस पे आते हैं. इंफॉर्मेशन किसी के लिए भी कोई भी ऐसी चीज, अ पीस ऑफ डाटा जो कि कोई मानी रखता है, इट्स इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ मैं एक गाड़ियां बनाता हूँ, आई एम अ कार मेकिंग कंपनी, और आई हैव डाटा अबाउट द डिफरेंट कार्स, उनकी बनाने के तरीके, डिफरेंट इंजन्स की डाटा, सो दैट इज इंफॉर्मेशन. And for other professions they have different kind of information. अच्छा, ये फिजिकल भी हो सकती है और डिजिटल भी हो सकती है, और डिजिटल होके आपके पास कंप्यूटर में भी हो सकती है, और इट कैन बी ऑन द साइबर वर्ल्ड, जिसे आप इंटरनेट कहते हैं. सो प्रोटेक्टिंग द इंफॉर्मेशन एवरीवेयर, फिजिकली इन योर और डिजिटली, उसको हम कहते हैं, वी कॉल information security. So information security is securing your information, whether it is a physical information or it's a digital information. जबकि cyber security का मतलब ये है कि वो information जो कि digital होकर cyber world में चली गई, internet पे चली गई, it's been communicated or you can access that through the internet, उसे कहते हैं cyber security. So the information on cyber world
उसको जो डील करेगी वो साइबर सिक्योरिटी है, और फिजिकल भी साथ ऐड कर लें, दैट विल बी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सेकेंड थिंग इज both are associated with security of information and computers, क्योंकि मोस्टली फिजिकल पेपर वर्क अब बहुत कम रह चुका है। यस, यू हैव इंफॉर्मेशन आपकी, यू हैव सम इंफॉर्मेशन ऑन आइसोलेटेड कंप्यूटर्स एंड यू डोंट शेयर दैट ऑन इंटरनेट एंड यू डोंट कनेक्ट दैम, बट फिजिकल बहुत कम रह गई है। दुनिया आहिस्ता आहिस्ता साइबर वर्ल्ड में जाना शुरू हो गई है। वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, वी आर जस्ट, हमारी प्रेजेंस है, जस्ट प्रेजेंस, वी हैव प्रेजेंस इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, बट वी स्पेंड एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ ऑन द साइबर वर्ल्ड। चाहे वो बिजनेस हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, एनीथिंग, रिसर्च हो, एनी प्रोफेशन, एनी प्रॉब्लम, एनी सर्विस, कोई भी चीज यू रिक्वायर, वो सारी की सारी नाउ इज टर्निंग ऑन द साइबर वर्ल्ड। वो साइबर वर्ल्ड के ऊपर हर चीज आ रही है। वो आपको एक दिन आएगा कि मे बी हम अपने रिस्ट के ऊपर कोई डिजिटल डिवाइस या बहुत छोटी सी चिप कहीं लगी होगी, एंड विल बी मूविंग एंड डिजिटली ऑपरेटिंग। सो many people have critiqued over it कि वो उसके advantages और disadvantages क्या हैं, but whatever the discussion, वो world is turning digitally, converting on the cyber space. So ये मैं इतना आपको एक्सप्लेन इसलिए किया, इसी से आपको साइबर सिक्योरिटी की भी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी कि जब हमारी ज़िंदगी का हर पल साइबर वर्ल्ड पर चला जाएगा, हम हर पल उसी पे डिपेंडेंट इतने ज़्यादा हो जाएंगे, तो सिक्योरिटी भी उसकी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली मीन्स डीलिंग विद और डिफेंडिंग द डिजिटल डाटा इन साइबर स्पेस। Information security means protecting data in cyberspace and beyond. It means physical also. ये मैं explain आपको कर चुका हूँ। In short, in nutshell, we can say that cyber security can be perceived as a subset of information security. I would say जैसे कि father and son relation, cyber security is father, और जो information security is father and cyber security is the son. अब हम उस पे आते हैं कि जी इसकी सब डिविजन। साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, इट्स नॉट अ स्मॉल डोमेन और फील्ड, इट हैज़ मेनी सब फील्ड्स। इसकी बहुत सारी आगे शाखें हैं, एंड दे आर डिस्प्लेड, दे आर विजिबल टू यू। रिस्क असेसमेंट, इंसिडेंट मैनेजमेंट, एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड अदर्स, बिजनेस कम्युनिटी। बट मोस्टली जिसको हम समझते हैं, वी जस्ट टेक इट एज कि जी इंटरनेट पे गए और कोई चीज़ हमने किसी का फेसबुक या सम व्हाट्सएप हैक कर लिया, दिस इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। नो नो सर, दिस इज नॉट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। दैट इज वेरी वेरी चाइल्डिश अप्रोच टूवर्ड्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये पूरा कैरियर है जिसके अंदर बहुत सारे सब कैरियर्स हैं। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आने के बाद यू हैव टू डिसाइड कि मैंने इसकी किस डायमेंशन में जाना है, which dimension I have to move, and then within the cyber security आपकी again you have so many fields, critical infrastructure और बाकी हमजा मिस्टर हमजा आपको भी समझाते हैं इसके बारे में कि the information security और cyber security की जो है वो क्या क्या fields हैं और हमारी लाइफ में किस तरह ये इन्वॉल्व होगी हुई है। फॉर द टाइम, जो आइंदा का टाइम है, the coming time, it will be impossible कि हम इससे अवॉइड कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। सो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर जैसे कि यहिया साहब ने बताया कि बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसके अंदर हम लोग अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर हम बिगर पिक्चर में देखें तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर जो मेजर हमारा गोल है कि हमने अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना है ओवर द एडवर्सरी से, साइबर क्रिमिनल से उसको प्रिवेंट करना है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास इन अ बिगर पिक्चर डिफरेंट मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनको हमें अचीव करना है। उसके अंदर
एक मेजर पार्ट GRC का पार्ट है जिसको रिस्क असेसमेंट का पार्ट भी कहते हैं. सो इट्स अ कंप्लीट field in information security comes under the umbrella of information security, जिसके अंदर हम लोग policies, procedures, different standardized way of doing things और उसकी auditing और उसकी implementation और उसकी enforcement के ऊपर focus कर रहे होते हैं. फिर इसी तरह से हमारे पास एक बहुत ही interesting field है जो कि application security, क्योंकि आज के दौर के अंदर आपकी हर चीज़ एप्लीकेशन बेस्ड चल रही है. आपके हाथ में मोबाइल है, आप हमारे इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, आप एक एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं. आपको ऑफिस की कोई ईमेल करनी है, आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज से कोई चीज़ मंगवानी है, डेटा डिजिटली मंगवाना है, आप किसी न किसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं. आपको अपने किसी दोस्त से बात करनी है, प्रॉब्ली आप व्हाट्सएप फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये तमाम चीज़ें एप्लीकेशन हैं और एप्लीकेशन कि अपनी सिक्योरिटी एक कंप्लीट फील्ड विद इन इटसेल्फ है. सो एप्लीकेशन के अंदर बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है, जैसे कहा कि जी हर फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ है. तो एप्लीकेशन में आपको छोटे से एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो वेब एप्लीकेशन एक अलग पूरी फील्ड है, मोबाइल एप्लीकेशन एक अलग फील्ड है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन एक अलग फील्ड है, थिक क्लाइंट, थिन क्लाइंट, क्रॉस प्लेटफॉर्म, सारी एप्लीकेशन की अपनी अपनी फील्ड्स हैं और इन पे प्रोफिशिएंसी के लिए आपको बहुत डिटेल में इस फील्ड के अंदर एंटर होना पड़ेगा. इसी तरह से ISMS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम मैनेजमेंट, ये भी कुछ उसी रिस्क असेसमेंट के फील्ड से ही रिलेवेंट फील्ड है. इसके अलावा बिजनेस कंटिन्यूटी इज वन ऑफ द मेजर पार्ट्स एंड आर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. उसकी रीज़न ये है कि खुदा ना खास्ता आपका मेजर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन हो जाए और उसकी एक्सेसिबिलिटी साइबर क्रिमिनल्स रोकते हैं तो उसके अंदर बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं. इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं 2017 के एक रैंसमवेयर इंसिडेंट से दूंगा, जहां पे एक रैंसमवेयर ने नॉर्वे के एक हॉस्पिटल को क्रिपल डाउन कर दिया था. उसके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉन्टिन्यूटी या एक्टिव होने से बिल्कुल उसने उसको प्रिवेंट कर दिया था, उसको रोक दिया था. तो उस पॉइंट पे हॉस्पिटल में मौजूद पेशेंट्स को जो रिक्वायर्ड मेडिसिन थी उनकी फराहमी भी मुतासर हुई और वो हॉस्पिटल बिल्कुल न्यू इनटेक करने से भी इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द हॉस्पिटल टू टेक एनी मोर पेशेंट्स इनटू द फैसिलिटी. सो उसकी वजह से कोई जानी नुकसान भी हो रहा था लोगों का. तो बिजनेस कॉन्टिन्यूटी का एक एस्पेक्ट ये है, इसके बहुत सारे और एस्पेक्ट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड वाटर सप्लाई है. जैसे कि रिसेंटली वी हैव सीन अमेरिका के अंदर रशियन साइबर अटैक हुआ वेयर वन ऑफ द वाटर फैसिलिटी वाज टारगेटेड एंड दे मैनिपुलेटेड द proportion of chlorine in the water and thus become the actual water which was for the drinking purposes of general masses became poisonous, literally poisonous. So आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर कोई इतने मैसिव लेवल पे पूरे शहर का पीने का पानी पॉइजन कर सकता है तो मेरा ख्याल है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ डेटा की सिक्योरिटी नहीं रहती, ये अब इंसानी ज़िंदगियों की सिक्योरिटी भी इसके अंदर ही शामिल है. मैंने आपको हॉस्पिटल की एग्जांपल दी, दूसरी एग्जांपल मैंने आपको पॉइजनस वाटर की दी और तीसरी एग्जांपल से मैं एक बात को इंक्लूड करूँगा कि 2016 के अंदर बाय 2016 अरामको सऊदी अरेबिया के अंदर एक साइबर अटैक हुआ था विच वाज प्लान्ड एंड डायरेक्टेड to actually create a blast in the facility rather than just stealing the data or disrupting the business continuity. From technology perspective, they wanted the facility to physically cripple down because the malware that they had written was written in a way that they changed the pressures in the pipe and pipes of the gas they were extracting from different places or something. So they wanted the facility to physically get a blast out of the pressure because of the high pressure in the pipelines.
सो अब फिजिकल सिक्योरिटी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है और अल्टीमेटली ह्यूमन लाइव्स भी इससे डायरेक्टली अफेक्ट हो रही होती हैं. इट्स नॉट जस्ट मोर अबाउट financials, data, privacy anymore. It's more about human lives as well as of right now. So ये तमाम fields information security का part है जो कि एक complete field है within itself. So इसके अंदर अगर बात की जाए तो obviously जैसे मैंने बताया कि critical infrastructure है, उसमें gas, oil and gas is one of the very critical infrastructures और उसकी security एक टोटल अलग फील्ड है. फिर एप्लीकेशन सिक्योरिटी विच इज़ अ वेरी वेरी हॉट टॉपिक एज ऑफ राइट नाउ और पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं पाकिस्तान समेत तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की डिमांड है वो इस टाइम पे एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर्स की डिमांड है. और इसके अलावा आने वाले कुछ सालों के अंदर IoT जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सिक्योरिटी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है बिकॉज ये एक बहुत रेयर स्किल है जो कि जनरली लोगों के पास नहीं है. सो IoT इज़ वन ऑफ द वेरी हॉट टॉपिक. आपकी छोटी सी एग्जांपल IoT की देना चाहूँगा कि आपके ऑफिसेज में, घरों में, स्कूल्स, कॉलेजेस के अंदर जो कैमराज लगे हुए हैं, सिक्योरिटी कैमराज, दीज आर एग्जांपल ऑफ दीज डिवाइसेस व्हिच आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट आर स्मॉल एग्जांपल ऑफ द IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. सो इन डिवाइसेस की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होगी जो कि इसके अंदर से बग्स ढूंढेंगे, वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढेंगे और उनको फिक्स करने में कंपनीज की हेल्प करेंगे. फिर इस वक्त एज ऑफ राइट नाउ और अगले 2 से 3 सालों के अंदर द नेक्स्ट हाई इन डिमांड स्किल इज गोइंग टू बी क्लाउड सिक्योरिटी. क्लाउड इज जनरली ओवरऑल IT इंडस्ट्री के अंदर क्लाउड इटसेल्फ एक बहुत हॉट टॉपिक है जिसको अगर आप रिलेट करना चाहें तो DevOps के नाम से इस फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जनरल IT टीम के अंदर, IT पर्सपेक्टिव से, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से. तो उस DevOps की फंक्शनैलिटी या मैथडोलॉजी को मज़ीद सिक्योर करने का नाम क्लाउड सिक्योरिटी है. उस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद सिक्योर करने के लिए क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है जिसको अगर हम इसका नया नाम जो आजकल मार्केट में इंड्यूस्ड है वो है DevSecOps. सो जो DevOps थे उनके अंदर सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व करने के लिए DevSecOps का उन्होंने एक नाम इंट्रोड्यूस करवाया. सो दिस इज एज ऑफ राइट नाउ एंड इन कमिंग 1 to 2 years अ वेरी हॉट सेलिंग स्किल जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर. इसके अलावा 5th स्किल की बात करूँगा विच इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कॉम्प्लेक्स स्किल दैट एनीवन कैन गेन बिकॉज आपके फाइनेंशियल सेक्टर में बैंकिंग सेक्टर है विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या साइबर सिक्योरिटी फील्ड. ये लोग डिमांड करते हैं कि उनका इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर भी, इंटरनल नेटवर्क भी हैकर्स के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथेंड हो और उसके अंदर वो इंश्योर करें कि कोई अटैकर आ भी जाए तो वो अब उनके सिस्टम की इंटरनल सिक्योरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो, उनके नेटवर्क की इतनी सिक्योरिटी स्ट्रेंथेंड हो कि कोई अटैक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट ना हो सके उनके नेटवर्क पे. सो अगर मैं बात करूं कि जी इसकी स्कोप की कितनी डिमांड है तो इस टाइम पे ये बात कहना बिल्कुल गैर मुनासिब नहीं होगा कि इस probably this is one of the most important skills और important personal जिन लोगों के पास ये skills हैं very very high in demand. और इसकी छोटी सी मैं relate अगर करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स को इक्वल टू डॉक्टर्स सैलरीज ऑफर की जा रही हैं. और हम भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मेडिकल प्रोफेशनल्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को बाहर के मुल्कों में कितनी हाई सैलरीज ऑफर की जाती हैं. तो approximately similar packages are being offered to cybersecurity professionals who are well trained, who understand the core concepts in a very well manner. जिसको अगर let's say application security के अंदर कोई हायरिंग हो रही है तो एप्लीकेशन की सिक्योरिटी से पहले उसको एप्लीकेशन की डेवलपमेंट और कोर अंडरस्टैंडिंग का भी अच्छी तरह से अंदाज़ा हो और एप्लीकेशन जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पे होस्टेड है उसके बारे में उसको पता हो तो दैट इज़ एन एडेड फीचर फॉर दैट पर्सन और उसके ऊपर उसको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियली रिवॉर्ड किया जा रहा है. आप स्पेसिफिकली
हर इंडस्ट्री में इस टाइम पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात कर लें, आप लॉ इन्फोर्समेंट इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें, आप फाइनेंशियल सेक्टर की बात कर लें, और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी की सर्विसेज थर्ड पार्टीज़ को प्रोवाइड करती हैं. सो दे ऑल्सो रिक्वायर वेरी हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत अच्छी तरह वेल वर्स्ड हों. इसके अलावा आपकी 5th जनरेशन वॉरफेयर का जो पर्सपेक्टिव है वो भी पूरा यही कहता है कि जो नेक्स्ट वॉरफेयर लड़ी जा रही है या लड़ी जाएगी वो साइबर स्पेस में लड़ी जाएगी. तो उसको काउंटर करने के लिए, अपने जनरल मुल्क के डिफेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी की स्किल्स को इन्हांस करें. अब इसके अंदर हम आगे जाके पढ़ेंगे ऑफेंसिव और डिफेंसिव के पर्सपेक्टिव से, लेकिन पूरा क्रक्स ये है कि अगर आप इन मेंशन स्किल्स में से कोई भी स्किल अटेन करते हैं तो अल्टीमेटली आप अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं. आप जहाँ पे भी मौजूद हैं, आप जिस भी सेक्टर में मौजूद हैं, वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, वो हेल्थ केयर सेक्टर हो, वो गवर्नमेंट का कोई इदारा हो, आप अगर वहाँ पे बैठ के और फुल ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं और अपने जो हिस्से का काम है वो पूरी तरह से कर रहे हैं, जो एप्लीकेशंस आपको दी गई हैं सिक्योर करने के लिए आप उनको पूरी ऑनेस्टी से सिक्योर करते हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस के डॉक्यूमेंट लिखने को आपको दिया गया है या रिस्क असेसमेंट्स करने का काम आपको असाइन किया गया है, अगर आप वो पूरी तरह से कर रहे हैं तो आप ओवरऑल मुल्क की सिक्योरिटी, नेशनल डिफेंस के अंदर अपना एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं. क्योंकि इंटरनेट के आने से अब जनरल बाउंड्रीज नहीं रह गई. अब तक हमें किसी और मुल्क से ख़तरा ये था कि कोई दुश्मन मुल्क हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे मुल्क में ना आ जाए. इस वक्त वो बॉर्डर की कॉन्सेप्ट्स ख़त्म हो चुके हुए हैं. जैसे याहिया साहब ने पहले मेंशन किया कि तमाम डेटा हमारे कंप्यूटर्स के अंदर पड़ा हुआ है. अब हमारे हर चीज़ की डिज़ाइनिंग, हमारी गाड़ियों की स्पेयर पार्ट्स की इवन डिज़ाइन होना है तो वो भी 3D प्रिंटर्स के लिए 3D फुटप्रिंट, 3D ब्लूप्रिंट्स उन्होंने बना के कंप्यूटर में रखे हुए हैं. अगर वो पूरे वेल वर्स्ड डेटा आपका चोरी हो जाए जिसके अंदर बहुत सेंसिटिव डेटा हो तो ओवरऑल मुल्क को नुकसान होगा. इसकी एक एग्जांपल फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देना चाहूँगा कि पिछले कुछ सालों पहले एक बहुत मशहूर बैंक को कॉम्प्रोमाइज़ किया था जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स उस बैंक से हैकर्स ने निकाल लिए थे. तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें कि जनरली पाकिस्तान के अंदर पहले ही डॉलर या फॉरेन एक्सचेंज की कितनी कमी है, और अगर खुदा न खास्ता कोई साइबर इंसिडेंट होता है जिसके अंदर बैंक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और उसमें से हमारा इंतहाई कीमती इस वक्त डॉलर्स निकल जाएं, तो हमें सिर्फ एज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नुकसान नहीं है या उसके रेपुटेशन का नुकसान नहीं है, बल्कि एज ए नेशन हम लोगों को ओवरऑल उसका इफेक्ट फील करना पड़ेगा. सो ओवरऑल अगर मैं इस पूरी चीज़ को समराइज करूँ तो इन तमाम चीज़ों से हमारी ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी जेपरडाइज होती है, और इन नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें इंश्योर करना है कि हम लोगों की हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करें जो कि अपनी स्किल्स के साथ इन पर्टिकुलर डायमेंशंस के अंदर अपना अपना रोल अदा करें. उसमें ऑफेंसिव रोल्स भी हैं, उसमें डिफेंसिव रोल्स भी हैं, उसके अंदर पॉलिसी, प्रोसीजर्स, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के रोल्स भी मौजूद हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्स के रोल्स भी मौजूद हैं. सो अगर बात करें जनरल हम आईटी की पर्सपेक्टिव से इन अ बिगर पिक्चर, तो स्किल शॉर्टेज के हवाले से जापान इज़ लीडिंग, जहाँ पे 81% जॉब्स को उनकी मर्जी के स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स नहीं मिल रहे. सिमिलरली इंडिया में 64%, ब्राज़ील में 63% एंड लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन. जो कि ये स्टैटिस्टिक्स बाय द वे कुछ साल पहले के हैं, ये अभी बिल्कुल लेटेस्ट स्टैट्स नहीं है, लेकिन आप अंदाज़ा इन स्टैट से लगा सकते हैं कि जनरली स्किल, मैं सिर्फ साइबर सिक्योरिटी की स्किल की बात नहीं कर रहा, जनरल आईटी की स्किल की बात कर रहा हूँ इस पॉइंट पे. तो ये स्किल यहाँ पे इतनी ज़्यादा हाई डिमांड है कि 81% कंपनीज कहती हैं कि जी हमें हमारी मर्ज़ी का
बंदा नहीं मिल रहा। तो अगर मैं इन स्किल्स के अंदर अगर हम मज़ीद डिग डाउन करें एज पर द स्टैट्स ऑफ 2021, तो हाईएस्ट इन डिमांड स्किल इज साइबर सिक्योरिटी एज ऑफ राइट नाउ। ओवरऑल जितनी स्किल्स की डिमांड है, आईटी में जितनी भी स्किल्स की डिमांड है, उसमें अगर 48% स्किल्स की जो डिमांड है वो साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स के लिए, और उसके बाद फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड आर्किटेक्चर जो डेवऑप्स से रिलेटेड बात है, और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्ट की जॉब्स। जो जनरल बिल्कुल नॉर्मल स्किल्स की अगर हम बात करें, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर हो गए या फोटोशॉप की स्पेसिफिक टूल बेस्ड स्किल्स हैं, उनकी जनरल शॉर्टेज रिलेटिवली मार्केट में कम है। इस वक्त 7% सिर्फ और सिर्फ वो लोग इन डिमांड है। लेकिन एक स्पेसिफिक फील्ड की जो शॉर्टेज है या जो हाईली स्किल्ड एक्टिविटी करवानी है, तो उसमें हम देखें तो सर फहरिस्त इस टाइम पे साइबर सिक्योरिटी है, जो कि 48% आईटी सेक्टर के अंदर उसकी स्किल शॉर्टेज है। 2013 के स्टैट्स के मुताबिक तकरीबन साइबर क्राइम से जो ग्लोबल फाइनेंशियल इम्पैक्ट था, दैट वाज अराउंड $US में $3 ट्रिलियन का साइबर इम्पैक्ट हुआ है अब तक। और इसके अलावा जो उससे पिछले साल जितने साइबर इंसिडेंट्स हुए थे, उससे 62% इंसिडेंट्स मज़ीद बढ़े हैं। तो अगर हम 2012 और 2013 के स्टैट्स को देख रहे हैं, तो आप जस्ट इमेजिन करें कि इस वक्त 2022 के अंदर इन स्टैट्स में कितना एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हुआ होगा। जबकि इस वक्त हमारे पास बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की कंप्यूटेशन पावर भी मौजूद है, हमारे पास जनरल कंप्यूटेशन के साथ साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। बैक इन 2013 हमारे पास ना ही गूगल मीट था, ना ही जूम की टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। आजकल पूरे सेशंस या क्लासेस हम जूम पे अटेंड कर सकते हैं। तो इस वक्त जितने साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स तैयार हो रहे हैं, उतना ही उसके बराबर ही साइबर क्राइम का इजाफा भी हो रहा है। तो अगर मैं 2014 के स्टैट्स को की बात करूं, तो जनरली आईटी के अंदर वेरी फ्यू प्रोफेशनल्स आर अवेलेबल एज कम्पेयर टू, अगर इसका सिर्फ कंपेरिजन करें कि जो डिमांड है उसके बराबर, उसके कंपैरिजन में हमारे पास बहुत कम प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं। सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर 2014 में 1 मिलियन प्लस अनक्वालिफाइड सिक्योरिटी जॉब्स हैं पूरी दुनिया में, विच इज़ व्हाट 83% ऑफ एंटरप्राइजेज ग्लोबली, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। तो इसके अंदर जनरली आपको एस्पेक्ट अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव से बताऊं, तो ग्लोबली 3.12 मिलियन जॉब्स अवेलेबल हैं एज पर द स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर ईयर 2021। और डिफरेंट रीजन की अगर हम बात करें और अपने रीजन एशिया पैसिफिक की बात करें, तो उसके अंदर 2.45 मिलियन जॉब्स अवेलेबल हैं। सो ओवर टू। थैंक यू मिस्टर हमजा साहब ने बहुत अच्छा आपको एक वाइड स्पेक्ट्रम में एक आइडिया दे दिया है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड इट्स वन ऑफ द फील्ड्स द साइबर सिक्योरिटी। क्या डेफिशिएंसीज थी और वक्त के साथ साथ वो ज़्यादा होती गई, कम नहीं हुई हैं। एंड इन द फ्यूचर जिस हिसाब से डिजिटाइजेशन इज़ ऑन द इंक्रीज, दिस डेफिशिएंसी इज़ गोइंग टू इंक्रीज मोर। Even though कि बहुत सारे institutions and people they are training and educational academic organizations बन रही हैं, लेकिन still deficiency जो है it is grasp में नहीं आ रही। बहुत सारी इसके effects हुए, आप जानते हैं, सुनते हैं रोज़, उबर ब्रीच हुई, उबर के साथ क्या हुआ, डाटा लीक हुआ, there were other many different examples। हमारी डेली लाइफ हो, इकोनॉमिक्स हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, देयर इज नथिंग विच इज नाउ आउट ऑफ, विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। पाकिस्तान के डाटे में टिल नाउ दे हैव maybe they have the data but they have not officially announced. The only statement after searching I could find was
कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ये हमारे प्रेसिडेंट जो हैं आरिफ अलवी, उन्होंने वो एक रिसेंटली इन सितंबर 13, 2022 डेली टाइम्स में उनका आया था कि पाकिस्तान, द प्रेसिडेंट सेज रिस्क ऑफ साइबर अटैक्स हैज़ ग्रोन विद पाकिस्तान advancement towards digital growth, and we need millions of cyber security graduates, and not only graduates, I would say skilled people. To get a degree is something else, और उसके बाद उसकी to get appropriate skills is something else. ये एक अलग चीज़ भी समझने वाली है। सिर्फ डिग्री करने से आपको स्किल्स नहीं आ जाती। That is theory, mostly theory. The conceptual आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है, बट आफ्टर दैट आप अपने हाथ से वो चीज़ें नहीं कर पाते। देन यू हैव टू गो टू दी स्किल्ड इंस्टीट्यूशन टू लर्न अप्रोप्रिएट स्किल्स जो आपको चाहिए। सो आई वुड से दैट इन ऑर्डर टू गेट इनटू दिस फील्ड, पहले आपको अपनी अप्रोप्रिएट अपने आप को एक्सप्लोर करना होगा कि व्हाट आर, आपका शौक क्या है, व्हाट आर योर फेवरेट एरियाज। बिकॉज जब आप किसी भी चीज़ को करने लगते हैं तो जो आपको पसंद है उससे आप थकते नहीं हैं। सो आप पहले इसको समझें कि मैं किस फील्ड में जाना चाहता हूँ, किस पाथवे पे जाना चाहता हूँ। देन यू डिसाइड कि मैं इसकी जो एंट्री लेनी है किस लेवल से लेनी है। बिकॉज हमें सिंपली इंक्वायरीज आती हैं, पीपल से कि मुझे बस एडमिशन लेना है, हैकिंग सीखनी है, अब मुझे वो कुछ करना है। तो हम उससे पूछते हैं कि जी, कोई कहता है मैंने जी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी करनी है, तो हम उससे आप पूछते हैं कि भाई आप किस फील्ड, किस ट्रैक में, किस जगह, किस एरिया में इंटरेस्टेड हो। तो उनके पास उसकी कोई जवाब नहीं होता। दिस वॉज द रीज़न, वन ऑफ द रीजन्स वी डिसाइडेड टू होल्ड दिस वेबिनार टू गिव अ जनरल अवेयरनेस, सो पीपल शुड डिसाइड, उनको पता हो कि मैंने किस, ये फील्ड है क्या और मैंने किस फील्ड में जाना है, व्हाट इज दैट आई वांट, जो मैं करूँगा। देन गेटिंग ऑन टू दैट पाथवे एंड दैट लेवल इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो इसमें आप लोगों को यू कैन विजिट द वेबसाइट, हमारा वेबसाइट आगे इसका लिंक आ जाएगा। वी ट्राई टू गिव ऑल दी बेसिक इंफॉर्मेशन विच कैन मेक यू डिसाइड, एंड आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी फील्ड क्या होनी चाहिए, मेरा पाथवे क्या होना चाहिए। सो कमिंग ऑन टू आइजे नाउ, जो ग्लोबल डाटा एंड पाकिस्तान डाटा, द डेफिशिएंसीज एंड ऑल अपॉर्चुनिटीज टू डिस्कस होगी। आइजे इज अ कॉन्सेप्ट, अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था जो कि अब इंडिजिनस हो, अपने कोर्सेज खुद डिज़ाइन करे इन लाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इफ नॉट बेटर, एटलीस्ट इक्वल, बट व्हाई नॉट बेटर। सो अभी तक हम वही काम कर रहे थे कि जी बाहर से दूसरों के कोर्सेज लेके वो करा दिए। सो उसके बाद उनसे फीस ली और आगे एग्ज़ाम ऑनलाइन दे दिए। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर स्किल्स की थी कि वो सर्टिफिकेशन तो ले लेते हैं फ्रॉम डिफरेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट चूँकि रिमोटली ऑनलाइन आप एक लेवल तक किसी को कोई स्किल लेवल दे सकते हैं। फॉर स्किल लेवल यू हैव टू बी प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ समबडी, टू बी फिजिकली देयर एंड लर्न। So ISE was the concept of a group of people जिन्होंने ये सोचा कि पहला बीज क्यों ना लगाया जाए, why not to make institution which is indigenous, अपने ही सर्टिफिकेशंस डिज़ाइन करे अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कोर्सेज डिज़ाइन करे और उसको उस लेवल पर जाकर रन करे कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिकल स्किल्स शुड बी एक्सीलेंट, और जो वहाँ से वो स्किल्स और नॉलेज लेकर जाए दैट शुड स्पीक ऑफ इटसेल्फ। सो वाइट, इट्स बेसिकली आइजे इज, हमारा लोगो जो है यू हैव सीन इज द वाइट हैट्स नेस्ट। इट मीन्स इट्स अ नेस्ट फॉर ऑल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पीपल हु वांट टू लर्न। एंड जैसे एक नेस्ट में एक है, उसमें एक अंडा होता है, उसमें से एक चूज़ा निकलता है, फिर यू फीड दैट
वो जो परिंदा है उसको, एंड वन डे इट कम्स, इट्स लर्न्स टू फ्लाई एंड इट्स फ्लाइज ऑफ द नेस्ट, और उसके बाद एक दिन आता है कि ग्रेजुअली फिर वो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सीवियर विंड्स को हैंडल करता है एंड बिकम्स अ वेरी एक्सपर्ट ईगल और बर्ड और एनीथिंग. सो इट्स अ वाइट हैट्स नेस्ट, and of course it's a prestigious institution founded on 23rd March 2019. It's our own. We design everything. We are proud that everything is indigenous, and it's the first institution of its kind in Pakistan. It was of course conceived by a group of intellectuals जो कि इसकी necessity को उन्होंने समझा और देखा और ये कहा कि हम बहुत पहले ही बहुत पीछे हैं and we need to address that gap, and this was first state of the art institution addressing this field of information security as well as cyber security in line with the existing international standards. It's very diverse, it's modular, it's purpose driven, multidimensional, multi-level. It means that you can join it at any level, a beginner level. It's modular because beginner level पे आए आप या expert level पे आए, any level. Specific skills के लिए specific चीज़ें डिज़ाइन की हुई हैं. It's not everything put into one box. We have splitted them very dedicatedly according to the purpose. Multidimensional इसलिए है कि it deals with various dimensions of information security and cyber security. Multi-level इसलिए है कि इसके अंदर you have different levels from beginner to the expert and advanced. You gradually move on to the highest levels. So 3 इसके अंदर कैरियर स्टेजेस हैं. अब लेवल्स क्या हैं, स्टेजेस क्या हैं, बाकी चीज़ें क्या हैं, ये आपको ज़रा गौर से समझनी है. स्टेजेस, फर्स्ट वन इज एमेच्योर स्टेज, when you know nothing about information security. आपको उसका शौक है, आप उसको कैरियर बनाना चाहते हैं, इट्स योर एम्बिशन, वॉट एवर. यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर साइंस का भी आपको कोई इतना नॉलेज नहीं है. लेट्स से यू आर ब्लैंक ऑन कंप्यूटर साइंस ऑल्सो, यू आर सिंपल मैट्रिक पर्सन एंड यू वांट कि मैं इसको अपना कैरियर अभी से ही बनाऊं. सो वी हैव कोर्सेज एट एमेच्योर लेवल्स. तो ये एमेच्योर की स्टेज हो जाएगी. प्रोफेशनल स्टेज को मैं यूँ डिफाइन करूँगा, इट्स अ स्टेज आफ्टर विच you are skilled enough to go out in the market and apply for a job. So after professional level, अगर आपने amateur level कर लिया and you move to the professional level, उसका कोर्स भी किया, now you at the basic level के आप मार्केट में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपका इतना स्किल लेवल है. And above that it will be एग्जेक्टिव स्टेज लेवल, जिसमें कि आप यू बिकम एन एग्जेक्टिव ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट यू नीड टू नो, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू नीड टू हैव. सो ये 3 मेजर स्टेजेस हैं. पहले आपको ये देखना होगा आईजे में आने के लिए कि मैं एम आई एट द एमेच्योर स्टेज और प्रोफेशनल स्टेज. और माइंड यू, मैं आपको वर्ल्ड का जो डाटा अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड के मेजॉरिटी अगर आप देखें हैकर्स जो हैं और इवन द बेस्ट हैकर्स, दे आर नॉन टेक्निकल. वो किसी और फील्ड में थे, वो कंप्यूटर साइंस से कोई ताल्लुक नहीं था, बट दे लैंडेड इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. बट ऑफ कोर्स जब आप लैंड कर जाते हैं तो यू नीड टू नो द नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड अदर आईटी कॉन्सेप्ट्स. नाउ उसके बाद आता है कैरियर पाथवेज. जब डिसाइड कर लिया कि मैं एमेच्योर लेवल पे जाना है या मैंने प्रोफेशनल लेवल पे जाना है, तो अब कौन सा रास्ता लेना है, कौन सी रोड लेनी है, यू हैव टू चूज दैट इन द सेकंड स्टेज. तो अब आप इसके ऊपर मिस्टर हमजा आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो 3 इसके पाथवेज हैं ये क्यों हैं और ये क्या हैं, एंड यू हैव टू डिसाइड ऑन योर बेसिंग ऑन योर नीड्स और योर डिज़ायर. तो इन 3 पाथवेज के अंदर से, इन तीनों पाथवे का कोर कॉन्सेप्ट एक्चुअल अपने इदारे का, अपने मुल्क का डिफेंस ही है. तो ये तीनों के तीनों बज़ाहिर आपको डिफरेंट लग रहे हैं, लेकिन इन अ नटशेल ये तीनों ही डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए ये पाथवेज बनाए गए हैं. इसमें अब इनकी डिवीज़न किस बेसिस पे है? इनकी डिवीज़न हमने 3 बेसिस पे, जनरली 3 बेसिस पे हैं, which is one is directly हम डिफेंसिव सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं,
जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आप कौन सी फायरवॉल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और फायरवॉल को आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नेटवर्क को आप किस तरह से कॉन्फ़िगर करें तो वो एक्चुअली सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। इसके अलावा आप सॉक यानी कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर को किस तरह से कॉन्फ़िगर करें, कौन से अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं मार्केट में। इसके अलावा सॉक के अंदर पूरा सॉक के ऑपरेट करने के लिए कौन सा सीम अच्छा है, कौन सी टीम होनी चाहिए, किस तरह से उसको अलाइन करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई अटैक एक्टिवली आ रहा है आपके नेटवर्क के ऊपर, आपके सिस्टम्स के ऊपर, तो आपने उसको डिफेंड कैसे करना है, उसको रोकना कैसे है और उसके ऊपर आपने मज़ीद उसको काउंटर अटैक कैसे करना है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी डिफेंसिव सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव से आती हैं। ऑफेंसिव सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा इसके ऑपोजिट होता है। ऑफेंसिव सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव चीज़ों की तोड़ फोड़ की तरफ ज़्यादा होता है। लेट्स से अभी मैंने आपसे बात कही कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अटैक आ रहा है तो डिफेंसिव टीम का काम उसको प्रिवेंट करना होगा, और अगर हम लेजिटिमेट एक्टिविटी की बात करें तो अटैक परफॉर्म करना ऑफेंसिव टीम का काम होगा। और उन अटैक परफॉर्म वो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन पे क्यों करेंगे? वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे इसलिए अटैक परफॉर्म करेंगे कि वो अटैक बिल्कुल किसी असली हैकर की तरह परफॉर्म करें और वो लूप होल्स आइडेंटिफाई करें जिनको एक हैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है या अब्यूज़ कर सकता है और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंसेस को बाईपास करके ऑर्गेनाइजेशन के क्रिटिकल डेटा तक पहुंच सकता है। तो ये एक ऑफेंसिव इंजीनियर का काम होता है कि वो एक असली हैकर या रियल लाइफ अटैक को मिमिक करके ऑर्गेनाइजेशन के वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करे और उनको आईटी टीम के साथ कम्युनिकेट करके उनको ठीक करवाए, उनको पैच करवाए और उन वल्नरेबिलिटीज या उन प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करवाए। दिस इज व्हाट एन ऑफेंसिव सिक्योरिटी इंजीनियर डज इन हिज डे टू डे जॉब। ऑफेंसिव में भी डिफेंसिव में भी दोनों में ही डेप्थ है, लेकिन मैं अगर लेट्स से एप्लीकेशन सिक्योरिटी की बात करूं व्हिच कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ऑफेंसिव सिक्योरिटी, तो आप प्रिसाइसली एप्लीकेशन के अंदर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो कि फॉलो नहीं हुए हुए, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, हैकिंग करके आइडेंटिफाई करेंगे और प्रूव करेंगे कि जी दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज हैकेबल यूजिंग दिस एंड दिस मेथड्स। तो आप एक डिटेल्ड रिपोर्ट एट द एंड ऑफ द डे लिख रहे होंगे। इसका बिगर पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली अपने ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना और स्ट्रेंथन करना ही है। सो वो डिफेंसिव पर्सपेक्टिव ही है, लेकिन तरीका आपका ऑफेंसिव होगा। डिजिटल फ्रॉड प्रिवेंशन एंड फॉरेंसिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। इसके अंदर भी अब बिगर पिक्चर में तो डेफिनेटली हमने प्रिवेंट ही करना है, लेकिन इनका काम फॉरेंसिक्स का काम आमतौर पे इंसिडेंट्स के बाद शुरू होता है और इस पर्सपेक्टिव से ये काम करते हैं कि आइडेंटिफाई करें कि अटैकर ने कौन कौन सी जगहों पे अपने फुटप्रिंट्स छोड़े, यानी कि वो कौन से रास्ते से आया, कौन सी चीज़ उसने एक्सप्लॉइट की, कहाँ पे उसने क्या चीज़ डिप्लॉय करके अपना कौन सा टूल यहाँ पे रख के कौन सा एक्शन परफॉर्म किया, और अल्टीमेटली आप पूरी ट्रेल बैक एंड फोर्थ आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपकी कोशिश डेफिनेटली होती है कि आप एक्चुअल अटैकर तक पहुंच जाएं कि वो कौन था, उसकी आइडेंटिटी क्या थी, ताकि उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सके। सो ये 3 कैरियर पाथ्स हैं, इसमें से आप तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं और तीनों की ही बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर डिमांड है। थैंक यू मिस्टर हमजा भाई ने आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से एलैबोरेटेड तरीके से इसकी टेक्निकल लोगों को ये चीज़ें सब बता दी हैं। फॉर नॉन टेक्निकल पीपल आई जस्ट समराइज कि अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है और आप किसी साइबर अटैक या किसी इंसिडेंट के होने से पहले कुछ करना चाहते हैं तो दैट इज़ डिफेंसिव। लेट्स से नेटवर्क को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योर करना। ऑफेंसिव सिक्योरिटी के आप ही के लोगों की ऑफेंसिव टीम हैकर की सोच से सोचेगी और हैकर बन के ऑफ कोर्स विद परमिशन अपने ही नेटवर्क को अटैक करेगी टू सी कि कौन से दरवाजे, कौन से लॉक्स कौन खुले हैं या कमज़ोर हैं, सो दे कैन आफ्टर डूइंग दैट दे कैन इम्प्रूव। बट पोस्ट उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है कि आफ्टर द इंसिडेंट इफ़ यू वांट टू इन्वेस्टिगेट कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको कन्वर्ट करके वी कैन प्रेजेंट इट
to a level which becomes a evidence in the court of law. इन्वेस्टिगेशन से इसका ताल्लुक होता है कि इन्वेस्टिगेट की चीज़ें ढूंढना और उसको फिर एज एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ प्रेजेंट किया जा सके. सो वो डिजिटल फोरेंसिक्स में आती हैं. यू प्रिवेंट दी फ्रॉड्स एज वेल एज यू प्रोड्यूस डिजिटल एविडेंसेस. एंड नेक्स्ट वी हैव 6 प्रोफिशिएंसी लेवल्स. नंबर 1 इज अवेयरनेस लेवल. जो इस फील्ड में नहीं भी आना चाहता लेकिन वो डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करता है, चाहे वो एक मोबाइल है, टैब है, शॉपिंग करता है, बच्चा है, बूढ़ा है, एवरीबॉडी हु इज यूजिंग एनी डिजिटल डिवाइस इन टुडेज वर्ल्ड, ही हैज़ टू नो मिनिमम लेवल ऑफ सेफ्टी मेजर्स कि मैं क्या करूं कहीं मेरा क्रेडिट कार्ड ना हैक हो जाए, कहीं मेरी और मसले ना हो जाए. सो एक आम जिंदगी में जो यूज़र ऑफ दी डिजिटल डिवाइसेस, आईटी डिवाइसेस को यूज़ कर रहा है, उसके लिए भी एक जनरल अवेयरनेस लेवल ज़रूर होना चाहिए कि ताकि वो जिसको एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स, नॉट समबडी टू एक्सप्लॉइट हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन, हिज पर्सनल डाटा और एसेट्स. बिगिनर लेवल ऑफ कोर्स जो इस फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं और उनको इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का और एथिकल हैकिंग का और साइबर सिक्योरिटी का और द कंप्यूटर साइंस. इवन माइंड यू के इवन आप BSc MS भी कर लेते हैं इन कंप्यूटर साइंस उसी किसी फील्ड में, बट यू हैव नेवर गॉन इनटू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी. देन यू हैव टू स्टार्ट एट बिगिनर लेवल अनलेस यू नो एडिक्वेट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, तो फिर आप इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्ट ले सकते हैं. सो इंटरमीडिएट लेवल इज बेसिकली द प्रोफेशनल लेवल. इंटरमीडिएट के बाद आप मार्केट में जाके जॉब अप्लाई कर सकते हैं. स्पेशलिस्ट लेवल इज व्हेन यू आर इन द मार्केट एंड यू आर डूइंग सम जॉब एंड अकॉर्डिंग टू योर सेटअप्स यू नीड डिफरेंट टूल्स जो लर्न करने हैं. किसी को किसी किस्म के, किसी को किसी किस्म के. ये वो टूल्स हैं स्पेशलिस्ट, एडवांस एंड एक्सपर्ट लेवल में, जो फिर आप अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड योर प्रोफेशन आप करेंगे. सो बेसिकली जिसने ये स्टार्ट लेना है और उसने प्रोफेशनल बनना है, बेसिक उसके लिए लेवल 2 हैं, बिगिनर लेवल एंड इंटरमीडिएट लेवल. अगर वो इंटरमीडिएट लेवल पे आता है तो डायरेक्ट चला जाएगा. वी होल्ड असेसमेंट फॉर दैट, वी हैव असेसमेंट टेस्ट फॉर एवरी लेवल. और अगर वो बिगिनर उस पर नहीं आता तो देन ही हैज़ टू गो टू बिगिनर लेवल. लेकिन जो हमारे ही लेवल के एक लेवल से कर लेगा, ही डजंट नीड असेसमेंट, ही विल गो टू द नेक्स्ट लेवल. बट कोई जंप करना चाहता है 2 levels up, again he will have to go through the assessment. This is a very broad pathway of 3 pathways: defensive, offensive, forensic, और उनके levels. ये अभी finalize नहीं हुआ. It was just to give you an idea. It is going under changes. इसको हम बार-बार rearrange करते हैं to make a very precise pathways and levels. So हम इसमें जो आपको ले पर्सन के लिए जो ज़रूरी है, जो फाउंडेशनल लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल विच इज़ प्रोफेशनल लेवल, एडवांस, स्पेशलिस्ट, ये सारा इट्स गोइंग टू बी अ नंबर ऑफ वेरियस कोर्सेज. बट इसमें आपको अपना सिर्फ ट्रैक देखना होगा. यू डोंट नीड टू डू ऑल ऑफ दिस. मे बी टू आर इनफ, मे बी 1 इज इनफ, मे बी 3 आर इनफ. तो वो आपको फिर अकॉर्डिंग टू द ट्रैक देखने होंगे. ये अभी फाइनल नहीं है. इट्स गोइंग टू बी डिस्प्लेड. द फाइनल जो होगा हमारी वेबसाइट पे फिर आ जाएगा. सो करंट कोर्स के अंदर वी हैव स्टार्टेड विद द IQAEH, which is ISA Qualified Amateur Ethical Hacking, and this is the beginner level, जिसमें कि 70% हम उनको theoretical background देंगे, conceptually background of computer science concepts, एंड देन 30% प्रैक्टिकल. ये फाउंडेशनल लेवल है, इसमें फाउंडेशन बनेगी. और इसका भी सेकेंड बैच की रजिस्ट्रेशन ओपन है, विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन फ्यू वीक्स, मे बी 2 weeks और सो इस कोर्स की जो बिगिनर लेवल का कोर्स है, फॉर दोज मिनिमम उसका क्राइटेरिया इज 10th standard. FA वाले, BA वाले, एनीबॉडी कैन कम. जो ऊपर के लेवल्स के लिए एलिजिबल नहीं है, ही कैन अप्लाई फॉर दिस. एंड अगर वो ऊपर के असेसमेंट टेस्ट में नहीं क्वालिफाई करता तो उसको हम नहीं देते, बिकॉज अगर आप उस लेवल के लिए एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं तो आप अपने भी टाइम और पैसे को ज़ाया करेंगे. एंड ऑफ कोर्स क्लास के भी लेवल एक नहीं होगा कि वो स्मूथली चल सके.
Fee structure is 30,000. Course duration is 8 weeks. Class schedule is 3-week classes a week. Of course, alternative days, Monday, Wednesday and Friday. एंड दूसरा बैच भी है तो उसकी दूसरी होगी 3 क्लासेस, टाइमिंग्स बिटवीन 6 and 10 PM। वो ज़्यादातर इसलिए कि हमारे पास जो ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ तो वो ऑलरेडी जॉब करते हैं, वो अपना कैरियर स्विच करना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सो दिस इज़ द टाइम। डिस्काउंट पॉलिसी इज डिस्प्लेड ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो। वी हैव अ पॉलिसी फॉर दैट, डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कंसेशंस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स एंड अदर। इसके बाद जो अपकमिंग कोर्सेज हैं, मैं आपको मिस्टर हमजा के से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इसके ऊपर वो अपकमिंग कोर्सेज पे भी बता दें। सो अपकमिंग कोर्सेज में हमारे पास आईजेक क्वालिफाइड एथिकल हैकर है, आईजेक क्वालिफाइड वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर है, आईजेक क्वालिफाइड डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर है। इन तीनों कोर्सेज को हम लोगों ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये प्रिसाइसली अपनी अपनी फील्ड्स को कवर करें। एथिकल हैकिंग का जो कोर्स है वो जनरली एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कोर्स है, विच इज़ अगेन वेरी इन डेप्थ, बहुत सारे प्रोफेशनल चीज़ों को ये कवर कर रहा होता है। आपको अगर किसी प्रोफेशनल कैरियर में जंप करना है तो इस कोर्स को करने के बाद आपको मुख्तलिफ फील्ड्स का बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, जिसके अंदर सिस्टम हैकिंग भी आएगा, जिसमें थोड़ा सा एक वेब एप्लीकेशन हैकिंग का भी कॉन्टेक्स्ट होगा, जिसके अंदर और बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर ही मर्ज्ड हैं, नेटवर्क पेन टेस्टिंग भी इसके अंदर ही शामिल होगा। तो ये आपको एथिकल हैकिंग के कोर्स के अंदर आप ये कोर्स करने के बाद आप मार्केट के अंदर डेफिनेटली एंटर हो सकते हैं, जहाँ पे आपको ये तमाम जो मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो इस कोर्स में पढ़ा दी जाएंगी। और ये एक प्रोफेशनल लेवल का कोर्स है। तो जैसे कहा कि अगर आपको जॉब मार्केट में एंटर होना है तो आप ये कोर्स करके जॉब मार्केट में एंटर हो सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टर का कोर्स होगा, विच इज़ अगेन अ प्रोफेशनल लेवल कोर्स। और इस कोर्स के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली फोकस कर रहे होंगे वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे। जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये एक स्पेसिफिकली वेब एप्लीकेशन का कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जिसके अंदर हमारी जनरली बात करें तो वेब एप्लीकेशन हमारे इंटरनेट का आजकल बैकबोन है। हर चीज़ वेब एप्लीकेशन की बेसिस पे चल रही हैं। इवन टेक्निकल लोग बात करेंगे जी APIs भी होती हैं, तो वो भी मोस्टली वेब टेक्नोलॉजीज पे चल रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस कोर्स के अंदर डिस्कस की जाएंगी। फिर लास्ट हमारा जो मेन कोर्स आ रहा है वो है डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का, और इसका कॉन्टेक्स्ट आपका फॉरेंसिक्स के पर्सपेक्टिव से होगा, इंसिडेंट रिस्पॉन्स के पर्सपेक्टिव से होगा, इसका नेटवर्क डिफेंस का पर्सपेक्टिव इस कोर्स के अंदर हम लोग कवर कर रहे होंगे। सो ये इंशाल्लाह हमारे अगले कुछ महीनों के अंदर आने वाले कोर्सेज होंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द एडमिशन प्रोसेस, जो भी इसके किसी भी लेवल के लिए आएगा, किसी भी पाथ को चूज करता है, एडमिशन प्रोसेस इज द सेम। ऑफ कोर्स फर्स्ट यू हैव टू चूज योर कोर्स, कि कौन सा मैंने कोर्स करना है, जिसके लिए पहले आपको खुद सोचना है किस पाथवे को लेना है और किस लेवल में मैंने जाना है। देन यू रजिस्टर फॉर दैट कोर्स ऑनलाइन, देन यू सबमिट द रजिस्ट्रेशन फीस, देन असेसमेंट टेस्ट विल बी कंडक्टेड टू सी कि क्या आपका वो नॉलेज लेवल है कि आप इसको समझ पाओगे, एंड देन इंटरव्यू टू सी यू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, बिकॉज हम इसके साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ भी एक छोटा सा मॉड्यूल रखते हैं। हाउ टू communicate with others, how to work in a professional organization, how to communicate, how to give a presentation, how to hold a webinar, how to conduct question answer sessions. जब आप practical field में जाते हैं तो these things count, your personality counts, your communication skills count a lot. Even in the interview ये बहुत ज़्यादा importance रखती है कि आप कैसे बोलते हैं, कैसे आप चीज़ों को handle करते हैं, how good you are in how able you are to present your knowledge with a convincing and assertive way. So उसके बाद इंटरव्यू के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, उसकी एक्चुअल एडमिशन आप हो जाएगी, एप्लीकेशन फ़ी आप जमा कराएंगे उसके बाद स्टडी विल स्टार्ट, देन यू clear the final assessment test, which will be a final criteria to give you a certification, which will then you become a certified
professional of that specific course. So details about the ISE qualified amateur ethical hacking already मैंने आपको दे दी है. ये जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, this is available on our website. इसका स्क्रीनशॉट आपको मैंने शो किया है. It has all the basic requirements needed to get the admission. तो ये आपको वेबसाइट से तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. डिस्काउंट पॉलिसीज़, ये भी हमारी जो एकेडमिक पॉलिसी है ऑन द वेबसाइट www.ise.edu.pk, उस पर ये दी हुई हैं डिफरेंट कैटेगरीज 5% से स्टार्ट होकर 50% तक डिस्काउंट किस को कितना हम देते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द पोस्ट एडमिशन, जब आपका एडमिशन होगा द मोड ऑफ एजुकेशन वुड बी उर्दू एंड इंग्लिश मिक्स्ड. सो इट विल नॉट बी टोटली इन इंग्लिश बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे टोटल इंग्लिश से वो नहीं एग्री करते, और टोटल उर्दू में भी क्योंकि जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज हैं उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते. इट विल बी sort of mixed mode of education. And coming on to the other mode also, कि अगर आप बात करते हैं मोड की कि हम किस मोड में पढ़ाएंगे, तो अभी तक ऑन कैंपस हम पढ़ा रहे हैं. दूसरा मोड हमारा ऑनलाइन होगा which will be interactive hybrid. वो अभी we are working on that, चीज़ें डेवलप हो रही हैं and soon that will be available online. वो कैसे होगा मैं आगे जाके आपको बताता हूँ. The theory to practical ratio beginner level के ऊपर 70% is the theoretical portion and 30% is the practical portion. At the professional level, it is other way around. 30% will be the theory and 70% will be the practical skills. Assessment, you have a theoretical assessment, a practical assessment and communication skills assessment before you are awarded the certificate. And after you clear all those theoretical, practical and communication skill final exam or assessments, which include labs also and theory also and your communication skills also, you will be awarded the certificate. In addition to other things, research एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर कोई भी चीज़ को मानी नहीं रखती. Research is a simple solution to a problem, and these problems are there available in front of our eyes in our daily life. लेकिन हमें वो उसको देखने वाली आँख नहीं है कि हम उसको एज ए रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और उसको एज अ प्रॉब्लम उठाएं और देन वी वर्क ऑन दैट सॉल्यूशन व्हिच इज रिसर्च. सो ऑल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग व्हिच आर रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हम उसके वो भी कराएंगे. And since research is common for all subjects, all disciplines, it's an art how to do research. उसकी methodology same है. So we would like कि हमारे जो यहाँ आए लोग वो research methodology को समझें, जानते हों कल को वो research thesis, research paper, anything they want to do a research and present their knowledge which they have researched. They know what is the international standard and way of doing that. And more will be research paper writing. Then we will have different conferences. The conferences will be on information security and biannual InfoSec conferences. We'll also do that. Then we are developing a hybrid teaching mode. The classes will be online but interactive. They will be live. Assessment test, of course, we are planning to do it with collaborate with virtual university since they have उनके सारे campuses हैं पूरी पाकिस्तान में. तो हमारे जो टेस्ट होंगे वो अगर वो एग्री कर जाते हैं and we collaborate with that, तो हम अपने टेस्ट ऑल ओवर पाकिस्तान जो हैं उनके जो campuses हैं उसमें किया करेंगे. But for labs you have to come to the campus, चाहे वो लाहौर में हो या किसी सिटी में, wherever the campus is available. अभी तो एक है लाहौर में. If there are more which have those facilities, तो वहाँ जाके आपको हफ्ता 10 दिन और एनी स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के लिए आके प्रैक्टिकल स्किल्स वहाँ करनी पड़ेंगी. ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे बहुत सारे लोगों ने हमने रिक्वेस्ट की, वेरी मेनी पीपल दे सेड के जी वी आर फार अवे, कोई कराची है, कोई पेशावर है, कोई कश्मीर में है, दे वांट के टू अवेल दिस फैसिलिटी. सो हम टोटल ऑनलाइन से सेटिस्फाइड नहीं थे.
उसके अंदर कुछ लूप होल्स हैं, बिकॉज वॉचिंग अ वीडियो माइट गिव यू एन इंफॉर्मेशन बट स्टिल यू हैव क्वेश्चंस जो आप पूछना चाहते हैं लाइव. सो इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस होंगी. एंड असेसमेंट्स घर में भी हो सकती हैं बैठ के टेस्ट, बट वी प्लान इट ऑन authorized centers in different cities. And for the labs we consider कि the person has to be present in front of us, सामने होना चाहिए बंदा, उसको तभी वो आएगा. So this is the future जो plans जिस पे हम already काम करना start कर चुके हैं. Hopefully they'll be soon inducted. And then is इंटरेक्टिव आइजे इंटरेक्टिव लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. ऑफ कोर्स यही वो सिस्टम होगा जो इन सारी चीज़ों को हाइब्रिड टीचिंग मोड पे हमें लेके जाएगा. वी विल आल्सो रन आइजे मैगजीन, अ क्वार्टरली मैगजीन इन बोथ ई फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज वेल एज द प्रिंट फॉर्म, कवरिंग इन्फोसेक एडवांसमेंट. एवरी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल जो है वो जिसने हमारे कंट्रीब्यूट किया होगा. और फॉर दिस रिसर्च ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे ही लोग करेंगे. When it's a research, anybody from the outside can join also. वो डिपेंड करता है कि उस स्पेसिफिक टॉपिक या एरिया के अंदर टीम लीडर कौन होगा, उसकी डिस्कशन पे होता है. सो एनीबॉडी जो नहीं भी है इन आइजे और कभी रहा भी नहीं है, he can also come. We are very open hearted in that regard. You are welcome in the research. We'll develop different forums necessary at professional levels and other levels to share the views and mentorship. Of course we'll hold the competitions at various level from city to national level, और इसमें हमारे लोग भी होंगे और दूसरे भी सारे सबके लिए ओपन होगा ताकि इस चीज़ को प्रमोट किया जाए. Alumni will develop alumni and ISA is just not as computer science or information security इंस्टीट्यूशन नहीं है. इट्स अ कंप्लीट कल्चर. हम एक पूरा नया कल्चर डेवलप करके एंड वी आर मूविंग इन दैट. इट्स अ फैमिली. एनीबॉडी हु इज अटैच्ड टू अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज आवर फैमिली एंड विल ओन हिम थ्रू आउट एंड विल असिस्ट हिम थ्रू आउट. सो वंस विद आइजे इज ऑलवेज विद आइजे. चाहे वो आइजे का कोर्स हो, उसका एलुमनाई हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, रिसर्च हो, एनीथिंग. सो इट्स अ कंप्लीट कल्चर. एंड sometimes some people ask very such questions के जो मैं मुनासिब नहीं समझता उसको इधर बात करना, जिसके बाद हमने कहते हैं कि यार काइंडली दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल कॉमन टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन जहाँ आप ये कहें कि बस हमें एडमिशन दे दें और थोड़ा सा पढ़ा दें और सर्टिफिकेट दे दें. नो सर, इफ़ यू हैव दिस अप्रोच, आप काइंडली आइजे में आएंगे तो मसला होगा. यू विल नॉट बी गेनिंग एनीथिंग, क्योंकि यहाँ आप आएंगे. वी आर वेरी स्ट्रिक्ट इन असेसमेंट. अनलेस यू फॉल योर स्किल्स, योर knowledge comes to that level that you should be awarded a certificate, only then you will be awarded certificate, otherwise no. And of course if एक दफ़ा आपने फीस भरी है और आप वो नहीं क्लियर कर पाए लेवल, तो उसमें हमारी एक और पॉलिसी है कि हम आपको दोबारा चार्ज नहीं करेंगे, हम आपको चांस देंगे. विल गिव यू एडिशनल चांस, और उसके बाद भी एक चांस होगा तो उसमें कुछ आपको थोड़ा सा चार्ज किया जाएगा. बट आफ्टर थर्ड अटेम्प्ट यू विल हैव टू redo the course again or do something else. So our alumni is our family and we are going to grow in our family and take care of our family. Thank you very much. With this short brief explanation, we come to the end, and now we come on to the question answers, and we want the critique and suggestions as well. So we're switching on to the screen mode now, and you can we'll share the question message in call messages. You can just message any questions you have and we can try to address your questions. So we have received a question from the participants that after doing this 30,000 course, will we be expert in doing brute force attacks, then DDoS, payload and other rootkit and RAT. So I invite
अगेन मिस्टर हमजा। सबसे पहले तो जो कोर्स जिसके लिए ये अमाउंट बताई गई है वो एमेच्योर कोर्स है, सो दैट कोर्स इज़ फॉर द बिगिनर्स जिनको बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उस कोर्स में हम लोग इतनी डिटेल में नहीं जा रहे होंगे। बहरहाल जो हमारा एथिकल हैकिंग का कोर्स होगा उसके अंदर हम लोग काफ़ी हद तक चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन इन टूल्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में हम बताएंगे तो ज़रूर, लेकिन इनको बनाना नहीं सिखा रहे होंगे उस कोर्स के अंदर। दैट विल रिक्वायर अनदर एक्स्ट्रॉर्डनरी एडवांस लेवल कोर्स जो कि हमारा मज़ीद आगे के प्लान्स के अंदर है, विच ऑल्सो रिक्वायर्स प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड एवरीथिंग। इसमें उन्होंने जैसे बताया कि जो हमारा बिगनर लेवल है ये जनरल इंट्रोडक्शन ज़रूर देगा कि रूट किट क्या होती है, बाकी चीज़ें क्या होती हैं। इट विल गिव यू अ जनरल आइडिया बट एट फाउंडेशनल लेवल, बट टू बिकम एन एक्सपर्ट सो दैट यू कैन बी स्किलफुल इनफ टू हैंडल दैट थिंग, वो प्रोफेशनल कोर्स में होगा। And professional, mind you, is the basic professional level. How high you want to fly, it's then your capability. वो skills आपको दे दी जाएंगी and then you have to move forward. So basic के अंदर आपको introductory या conceptual type चीज़ें होंगी and a very small hacking flavor उसमें आपको मिलेगा. But ये जो आपने बात question में मिला है, this is professional level. ये EH level पे होगा, not at AEH level. If you have any other question, you can come on the text message. ये क्वेश्चन एक और आया है कि सर आपका कौन सा स्कूल रावलपिंडी में है? एट प्रेजेंट वी डोंट हैव एनी अदर इंस्टीट्यूशन कैंपस एक्सेप्ट इन लाहौर. इट इज़ अवेलेबल, लोकेशन इज़ अवेलेबल ऑन दी गूगल मैप ऑन कैनाल रोड, आपको उधर से मिल जाएगी. बट of course, after doing that, we have a plan to increase our campuses in Lahore and in Pakistan, but it's a long project. We are going to mature one campus and then move forward. Inshallah, एक वो दिन आएगा कि ये पूरे पाकिस्तान में होगा. And we will be pioneers. What is the question? We will be the pioneers, so we are getting discounts. Question कोई समझ नहीं आया, but discount has nothing to do with the pioneers. We have a discount policy for everyone. It is given on our website. So if you want to go on in details, you just visit our academic policy. You will get the discount policy. How much seats are available? Okay. At present we have 18 seats available maximum, not more than that. उससे ज़्यादा seating होगी भी तो we don't have one computer and one setup complete equipment for one person. So maximum is 18 for one batch. Of course, अगर उससे ज़्यादा होंगे then you have to wait for the next batch. And unless we move on to the hybrid system soon, of course then there is no limit. You can go to any, उसमें जितने मर्जी आ सकते हैं. अभी तक हमने इंटरेक्टिव हाइब्रिड को लॉन्च नहीं किया. उसमें आप ऑनलाइन क्लासेस लेंगे इंटरेक्टिव, एंड ऑफ कोर्स डिफरेंट सेंटर जो होंगे जहां आपको भेजा जाएगा वहां आप जाके असेसमेंट टेस्ट दे देंगे. एंड हाउ मच, एनी मोर क्वेश्चन? You are asking about recognition of the degree in the world. जो प्रेजेंट सिचुएशन डेफिशिएंसी की है इस फील्ड में, रिकग्निशन की कोई अभी तक इम्पोर्टेंस की तरफ सोचा ही किसी ने नहीं. ऑफ कोर्स होती है, एंड दैट इज एक्रेडिटेशन कि जब आप नंबर ऑफ कोर्सेज कर लेते हैं एंड यू से कि आप मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है इन मास्टर्स और बैचलर्स, एंड दैट यूनिवर्सिटी शुड गिव मी सम क्रेडिट आवर्स रिलैक्सेशन. सो जो एक्रेडिटेशन पॉलिसी के वो पाकिस्तान की है. Of course, जब भी हम सारे कोर्सेज डिज़ाइन करेंगे एंड वी आर इन प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट, एंड इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट कि वो कितनी को एक्रेडिटेशन की, वो क्रेडिट आवर्स की देती है नहीं देती है. दैट्स अ फ्यूचर फ्यूचर सब्जेक्ट. हाँ जी, इक्वलेंस कितनी मिलती है, कौन क्या होता है, इस पे आपको मज़ीद हमजा भाई बताते हैं कि जी दुनिया में इस वक्त जो कहत है उसमें
रिकग्निशन वाला इशू जो है वो कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है? यू प्लीज़। जनरली अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें और इस तरह से एकेडेमिया की बात करें तो उसके अंदर बिल्कुल एक्रीडिएटेड सर्टिफिकेशंस होती हैं। ये वाली सर्टिफिकेशन अभी इस वक्त इस चीज़ पे काम किया जा रहा है लेकिन फ़िलहाल नहीं है। अगर हम जनरली मार्केट की बात करें और मार्केट की रिक्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ पे एक्रीडिएशन की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती। वहाँ पे आपकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और आपकी स्किल्स के ऊपर आपको हायर या सेलेक्ट किया जाता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल है कि हमें अगर स्किल बेस्ड लेबर क्रिएट करनी है, स्किल बेस्ड पर्सनस क्रिएट करने हैं तो हमें स्किल पे ज़्यादा फोकस करना है एज़ कम्पेयर टू सर्टिफिकेट और डिग्री। उनकी अपनी जगह पे डेफिनेटली इम्पोर्टेंस है लेकिन स्किल की इम्पोर्टेंस आज तक हम लोग इन जनरल हमारी एज ए नेशन अंडरमाइन करते आ रहे हैं। तो स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड सजेस्ट लेट्स ऑल फोकस ऑन स्किल रादर देन ए सर्टिफिकेट। Another question is the prices again. I have told कि amateur ethical hacking course की is 30,000 और बाकी courses जैसे जैसे आएंगे उनकी fees and other policies will be displayed on the website and you have to wait कि वो कब launch होता है। The ethical hacking professional course approximately a month or plus, so एक महीने के करीब वो launch हो जाएगा। The another question is how much the courses will be different from other market courses. Yes, this is an important question. This you have to decide. You have to take a chance and risk and come and taste it. And of course, after our few batches, the people who have done courses here can give you the best answer. Or unless you go through this institution, then you can make a decision that how good is ISA or how good is anyone. Basically, we believe in different policy. We don't believe in competition. We believe in collaboration. If anybody wants any help, ये collaboration basically हमारी खसियत होनी चाहिए मुसलमानों की कि हम दोनों को इल्म और चीज़ें देते हुए बहुत खौफ खाते हैं कि मुझसे बेहतर ना हो जाए, मुझसे आगे ना निकल जाए, ये मैं पीछे ना रह जाऊँ। हमारा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोगों को खड़ा होने में, बिल्डअप होने में असिस्ट करते हैं। वी बिलीव टू हेल्प अदर इन नॉलेज शेयरिंग, इन स्किल शेयरिंग। कोई भी हमसे कहता है कि आई वांट टू मेक अ इंस्टीट्यूशन, हमें गाइड करें, तो वी वुड लव टू डू दैट। हमारा मकसद है कि पाकिस्तान में ये फील्ड तेज़ी से बढ़े। सो वो अल्लाह के फजल से वी आर नॉट अफ्रेड कि हमारा रिजल्ट कोई ले जाएगा, क्योंकि वो अल्लाह के हाथ में है। वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दैट कि कोई किसी का रिजल्ट नहीं ले सकता। सो टू एनी लेवल anybody can come, our doors are open, not only for admission, for any kind of advice, any kind of help which you need for studying, for doing anything, and you want to go forward, even make your institute, no problem, we are available. Another comment is basic details you told can be googled. Of course, Google has more information than your different universities also, but still you have to go to a university. So जो scattered data इतना पड़ा है उसको कम टाइम में इन ऑर्गेनाइज मैनर में बताने के लिए, that is the reason it's a good comment. It says Mr. Ali Khan, cause the basic details you told is always Google. It is available, sir, बिल्कुल it is available. But since being the professional of this field, we Googled also, we got it from Google also, and we decided which one is more important and what's suitable for people who want to, who does not know nothing about this field, and उसके level की information कौन सी है जो उसको समझ आके रास्ता दिखा सके, and he can start thinking of this field and this as a career. So I agree to your comments. More valuable and more technical information can be googled than this. Do we have any other question? The intermediate, after the beginner level will be the intermediate level, which is the professional level. It will start approximately, I cannot give you a deadline, but approximately 1 month it will start. And of course the current amateur जो हमारा है ethical hacking, उसके अगले बैचेस चलते जाएंगे।
हम बड़ा एक स्मूथ तरीके से वो चल रहे हैं. वी वर्क ऑन टू लॉन्च अ कोर्स. हमें बड़ा मेहनत करनी पड़ती है टू ब्रिंग इट टू दैट लेवल. वी होल्ड अ लॉट ऑफ मीटिंग्स एंड अ लॉट ऑफ वर्क इज डन इन क्या पढ़ाना है, क्या कराना है, क्या मार्केट में चाहिए, क्या दुनिया में आगे आएगा, जो उसको हमारे बच्चे को पता होना, हमारे कैंडिडेट को पता होना चाहिए. सो वी ऐड ऑन वन बाय वन. सो योर professional intermediate level course will be coming approximately after 1 month or so. Another question is, I am uneducated because I am web developer. Can I join this course? Of course, sir, not even you are a web developer, so you are an IT professional. We say that even a metric simple person can come, but of course वो अपने level से start करेगा. You are a web developer, you already you know about IT. Yes, of course, if we have any student which has very high IQ और वो deserve करता है, तो maybe he is in class 4, 5 or 6, तो as a special case we might give him. और हमारे पास ऐसे एक student आए भी थे जो कि class 4 के थे. एक बच्ची थी और बच्चा थे, एंड दे वर एलिजिबल टू गेट द एडमिशन फॉर द बिगिनर लेवल, बट फॉर सर्टेन रीजंस उन्होंने कहीं जाना था इसलिए वो अटेंड नहीं कर पाए. सो दैट इज अ स्पेशल केस. बट मिनिमम लेवल नॉर्मल पर्सन इन मैट्रिक और FA और BA studying history, geography, any kind of other subject who doesn't know anything about the computer can also join. इसका हमने जो रोड मैप बनाया बिगिनर से इसीलिए बनाया है. एंड ऑफ कोर्स जो प्रोफेशनल है वो आगे चूज करेगा कि मैं किस लेवल पे फिट इन होता हूं. विल एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव, यू कैन राइट. ऊपर है. There are another question is, there are already some cyber security institutions in the market offering courses. Is so what the specific approach makes ISA good? What makes ISA different from the other institutes? किसी का नाम नहीं लूंगा and I will not discourage anyone because वो अपनी कैपेसिटी में हर कोई, everybody is doing something, is contributing. So no such comments to any institution. They are doing good. वो they are trying to do and contribute to this country and people. But उस मोड के अंदर जो भी जाता है, आप सिर्फ एक फ्रेंचाइज हैं जिसके हाथ में यू जस्ट पे एंड बाय किट्स फ्रॉम देम एंड गिव इट टू योर स्टूडेंट्स. एंड उसमें आगे फर्दर कौन किस हद तक उसको थ्योरेटिकली क्लासेस एंड लैब्स करवाता है, नहीं करवाता है, या आपको सिर्फ खुद ही जाकर ऑनलाइन देना है, उसमें वोचर पड़ा होता है. देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो डिफरेंट ऑफर करती हैं दुनिया की वो कंपनीज, एंड यू हैव टू गो बाय दैट. They are not allowed to design their courses. They are not allowed to alter the courses. And I don't think so कि वो सारे का सारा कोर्स का हर चीज़ वो खुद पढ़ाते हैं, कराते हों. ऑनलाइन कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, कुछ आप पे छोड़ दी जाती हैं. So that is what makes us different from others. That we don't teach what हम वो पढ़ाते हैं जो हम ज़रूरी समझते हैं. हम वो पढ़ाते हैं जो हम जब चाहें उसको बदल सकते हैं. अगर चेंजेस आती हैं उसको चेंज कर सकते हैं. अगर उस जो दुनिया पढ़ा रही है उससे ज़्यादा कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं. और जो हम समझते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ टाइम को लेंथी करने के लिए, तो हम उसको निकाल सकते हैं. बिकॉज वी डिज़ाइन आवर ओन कोर्सेज, वी डिज़ाइन आवर ओन लैब्स. ऑफ कोर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होंगी और वही चीज़ें होंगी तो ही फ़ायदा है. सो दिस इज़ व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. What will be the assessment test for beginner level? Beginner level का assessment test मैट्रिक का है, FA का है, तो हमें assessment test से ये नहीं डिसाइड करना होता. Of course, the higher level में अगर assessment test में वो पूरा नहीं आता तो admission नहीं मिलेगा. लेकिन beginner level तो है ही beginner level. So at the beginner level, no admission is rejected unless there are some other critical issues. There are critical crimes, even many other issues. So सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी वो असेसमेंट टेस्ट पास नहीं कर सका, बिगिनर लेवल पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं है.
लेकिन बिगिनर लेवल में असेसमेंट इसलिए की जाती है टू सी के जो क्लास शुरू करनी है, व्हाट इज़ देयर लेवल, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट बनाया है यही काफ़ी है या नहीं, इससे भी थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा इनको समझाने के लिए। बट अदर लेवल्स बियॉन्ड बिगिनर लेवल्स, हर लेवल का असेसमेंट टेस्ट अगर आप क्वालिफाई नहीं करते, यू विल नॉट गेट द एडमिशन। ओनली बिगिनर लेवल इज एग्जाम्प्टेड। Another question is already form, मैंने ऑलरेडी फॉर्म जमा करवाया है, दोबारा कब कराना होगा? नो, इफ यू हैव सबमिटेड अ फॉर्म you will get the reply at the appropriate time through email and or the admission team will get in contact with you, और जैसे ही वो करीब आएगा उसके events you will be told. Discount is available to group attendees. I say that we have discount for everyone, not only the attendees who have even not attended. The policy is there and you can go and you can if you are interested you can inquire from the website or give a mail and the appropriate authority will give you the answer. How much practical work will be in the AEH? So amateur level majority is the question is how much the question is how much practical work will be in the amateur level course. Okay. As a general policy, all amateur courses will hold 70% approximately theoretical work और जो प्रैक्टिकल वर्क 30%, और जो आगे उसके प्रोफेशनल लेवल होंगे देन फोकस ऑन द स्किल्स एंड टूल्स। सो वो 70 to 80% वेरिएशन के साथ प्रैक्टिकल होंगे और बाकी 20% और 30% जो है उसके अंदर इट विल बी थ्योरी, इट विल बी अदर वे अराउंड। और इसकी जो कॉस्ट मैंने बताई है मैच्योर की 30,000, और जो दूसरी आएगी ऑफ कोर्स हम इस चीज़ का सबसे बड़ा ख्याल इसलिए रख रहे हैं कि अगर आप CH लेवल का कोर्स करते हैं तो यू हैव टू पे अबाउट आई थिंक $1,500 to $2,000 डिपेंडेंट कि आप इन्फोसेक से करते हैं, आप इसी काउंसिल से करते हैं। लेकिन हम इसको बहुत नीचे रखेंगे, हम इसको वी डोंट वांट टू गो फॉर मनी मेकिंग इवेंट, अफोर्डेबल फॉर आवर पीपल। अगर 3-4 लाख बनता है या 3 लाख बनता है हम उससे मच लोअर पे जाएंगे। विल नॉट इतना नहीं करेंगे कि हमारे आम बंदे की बस से बाहर हो जाए, क्योंकि उनका ड्यूरेशन भी लंबा होगा, कोई 3 महीने का होगा, कोई 4 महीने का होगा, ये 2 महीने का है एमेच्योर वाला। सो जो इंटरनेशनल हमसे चार्जेस लिए जाते हैं उससे हमारा काफ़ी नीचे होगा, कम होगा। दिस विल बी आवर जनरल पॉलिसी। इट विल अदरवाइज तो फिर इट विल बी डिफ़िकल्ट लोगों के लिए अफोर्ड करना। वो जैसे जैसे कोर्स आएगा आपके सामने उसकी आती जाएगी। ऑनलाइन कोर्स इज योर इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड विद एक्रेडिटेशन? अच्छा, बाय एनी ऑथराइज्ड काउंसिल। वी आर affiliated.edu.pk आप बन ही नहीं सकते हैं जब तक आप किसी ना किसी तरीके से किसी भी गवर्नमेंट से एफिलिएट नहीं होते। वी आर affiliated with STC and through STC of course STC is affiliated with the Federal Ministry of Education. But हमारी जो डिस्कशन हुई थी, सारा कुछ हुआ था, उनकी अपनी पॉलिसी है। दे सेड कि जी आपका कोर्स करेंगे तो फिर हमसे भी आके दोबारा सर्टिफिकेट लेंगे तो हम उससे दोबारा चार्जेस लेंगे। तो इस सेट के इस तरह तो फिर डिफ़िकल्ट है, जो पे नहीं कर सकता डबल फीस और आपको भी। तो देन वी एग्रीड अपॉन के जो कोर्सेज की उन्होंने सर्टिफिकेट देना है उसकी वो फीस लेंगे। अगर उनका सर्टिफिकेट आप नहीं लेते तो फिर दैट विल बी विदाउट देयर सर्टिफिकेट, तो उसकी फीस आप ना दें। सो ये एक्रीडेशन वाले दी इक्वलेंस और ये बाकी चीज़ें जो हैं, सिंस ये जब तक हमारी नेशनल पॉलिसीज़ के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशंस इसको स्मूथ लाइन नहीं करती हैं, दिल बी नॉट एट दैट लेवल। बट मैं फिर आपको भी बता रहा हूँ कि वी आर ऑल्सो वर्किंग टू गेट इक्वलेंस इन डिफरेंट कोर्सेज अब्रॉड। देर आर सर्टन इंस्टीट्यूशंस और वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बाहर के UK की है और हैं कि अगर आपका ये कोर्स इस लेवल का है आप हमें भेजें और उसको करें एंड वील उसको लेवल डिसाइड करेंगे 1 2 3 4 एंड वी कैन गिव यू दी इक्वलेंस या एक्रेडिटेशन। तो वी आर इन द प्रोसेस नंबर 1, और वो इंशाल्लाह
होगा तो वो ज़रूर होगा। आप लोकली नहीं बल्कि इंटरनेशनली आप उसकी फ़ायदे उठा सकेंगे। बट सेकेंडली आपको बताया था उन्होंने अपना हमजा भाई ने कि इस लेवल के ऊपर दुनिया में इसकी योर स्किल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड देन इज द सर्टिफिकेट एंड देन एट द थर्ड लेवल इसके कहाँ से किया और किस इशू से किया। इफ़ यू आर स्किल्ड एंड यू हैव अ सर्टिफिकेट वी आर ऑफ कोर्स .edu.pk, लेकिन इक्वलेंस के और एक्रेडिटेशन के और ये इश्यूज अभी जो हैं वो उस लेवल पे, हम तो इस लेवल पे जाना चाह रहे हैं कि हमसे अगर आपने ये 4 कोर्सेज किए हैं हमने उसको शुरू किया हुआ प्रोसेस को, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो एजुकेशन वो सेक्टर है वो उसको एक इक्वलेंस दे कि जी आपको एमएससी या बैचलर्स में इतने क्रेडिट्स ऑफ कर दिए जाएंगे, स्पेशली इफ यू आर गोइंग टू साइबर सिक्योरिटी एमएस और बीएस, बिकॉज यू होल्ड दैट स्किल्स। सो दीज आर इन प्रोसेस and we pray that they get better and they get approved, so inshallah. Any other question you think? I guess आपने काफी डिटेल में If any question is left, please you can write before we close the session. Another question is that does your course have credit hours because I have to apply international? Yes, of course. We have a creditor policy and we will give you a sort of detailed mark sheet or something which will tell you that how much credit hours you have studied here in which subject, and then you can take it to anywhere else to show that I have gone through this much of credit hours. Any other question? Okay, I am very grateful to all of you that aap sare aaye, and इट वॉज अ मिक्स सेशन विद इंग्लिश उर्दू बिकॉज इसमें बहुत सारे बाहर से भी चंद लोग थे जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें उर्दू समझ नहीं आती, एंड दैट फॉरनर्स जो हैं उनको दे वांटेड इंग्लिश सेशन। वी ट्राइड टू मेक इट एज ईजी एंड फॉर बोथ एंड गिव यू एज मच एज डिटेल दैट यू वांट। ऑफ कोर्स इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि सून हम ये वेबिनार तो चलते रहेंगे, विल बी कमिंग टू योर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो for free webinars to give you general awareness in these fields कि अगर आप इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं तो क्या तरीका है। हमारा एम बड़ा सिंपल है कि आप सबको ये पता हो कि ये फील्ड क्या है, इसमें कैसे जाना है, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाएं आप, इन पाकिस्तान हमारा ना हो या बाहर का हो, यू शुड बी वाइज इनफ। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। विल बी होल्डिंग डिफरेंट सेमिनार्स इन योर यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो एकेडमिक, जो वहाँ भी आप अटेंड कर सकते हैं। So thank you all for giving you your precious time and listening to us. We are grateful. And any other information you want, you can come to the institution. I have said before also, it's a family. It doesn't, it makes no difference कि आप हमसे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते या दाखिला लिया कि no, it's your home. It's in Pakistan, it's your home. Think it as your family. जब मर्जी आओ आके जो मर्जी पूछो, इन्फॉर्मेशन लो, चाय पियो, and it's your home, it's your club. Come whenever you want. आप आ सकते हैं. So thank you all for your patience listening, and thank you all for your such nice participation. Now I hand you over to Mr. Hamza if he has something to say. Thank you. जैसे कि कहा यहिया साहब ने कि it's a home, और अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो आएँ, आपको जो क्वेश्चंस हैं आप पूछें, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लें, और आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें बाकियों से क्या चीज़ ज़्यादा डिफरेंशिएट कर रही है। कहा गया डेफिनेटली हम वी आर ओपन टू क्रिटिक। किसी ने यहाँ पे कहा कि जी दैट इज मोर वैल्यूएबल, यस डेफिनेटली। अभी सजेशंस एंड क्रिटिक कहा कि जी आप फी सबीलिल्लाह यूट्यूब पे क्यों नहीं पढ़ा देते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फी सबीलिल्लाह यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज मौजूद हैं अगर किसी ने सीखना है। और मैं पर्सनली प्राउडली अपने आप को भी कहूँगा कि मैंने जो हैकिंग सीखी और जब मैंने काम शुरू किया तो शायद मेरी लर्निंग के अंदर सबसे ज़्यादा रोल यूट्यूब का ही है, उसके बाद गूगल का है, और उसके बाद फिर जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनका रोल मेरी नॉलेज के, मेरी एजुकेशन के अंदर बाद में आ गया। कैरियर के लिए अल्टीमेटली यू हैव टू कम टू दिस सर्टिफिकेशंस की तरफ आना पड़ा। उसके अलावा मैं आज भी ये बात कहूँगा कि अगर मुझे जिस टाइम मैंने शुरू किया था मुझे कोई गाइड करने के लिए मिल जाता तो शायद मेरी ज़िंदगी के 5 साल बच जाते। सो वो जो आप यूट्यूब दायमा से जो ले रहे थे,
if there was somebody to guide you, तो वो उतना लाइफ आप आगे जा सेव करते हो, कुछ और कर चुके हो। डेफिनेटली मैं वो 5 साल में आज भी कह सकता हूँ डेफिनेटली कि मेरा हाफ ऑफ माय टाइम बच चुका होता अगर मुझे कोई प्रॉपर गाइड करने वाला होता। So that makes a difference that everything is available on the internet. लेकिन इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि उसमें आपको अपने मर्जी की और अपने लेवल की ढूंढने के लिए यू हैव टू डू लॉट ऑफ सर्फिंग। सो अगर ये आज उस जगह पे जो खुद सर्फिंग करते रहे हैं उस जगह पर बैठे हैं, एंड हमजा भाई इज़ वेरी वाइज इन दिस सब्जेक्ट, इज़ अ वेरी हाई लेवल एक्सपर्ट, तो ऑफ कोर्स ही नोज कि किस लेवल वाले को क्या इन्फॉर्मेशन देनी है और आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। दिस वॉज द मेन एम ऑफ दिस वेबिनार, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। दी गूगल इज़ ओपन फॉर एवरीबडी, यूट्यूब इज़ ओपन, लेकिन ये इसमें है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको बहुत, जो आपने 1 साल की सर्फिंग से चीज़ें ढूंढनी है वो हमें भी आपको वो चंद मिनट्स में बता दें या आधे घंटे में बता दें। वो एम आई राइट और रॉन्ग? डेफिनेटली राइट। कुछ मेरी अपनी रिसर्चेस ऐसी हैं विच टुक मी अराउंड 2 years, और आज मैं वो चीज़ लिटरली किसी को 5 मिनट में समझा सकता। सो दैट मेक्स अ डिफरेंस, एंड दिस इज़ वाई एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट। और हमारा एम, आई डोंट नो टू टेल यू और नॉट टू टेल यू, आप बिलीव करेंगे, मनी मेकिंग इज़ नॉट आवर प्राइमरी एम, फॉर अस दैट इज़ अ सेकेंडरी बाई प्रोडक्ट। जब कोई इंस्टीट्यूशन रन होता है, बिजनेस होता है, तो पैसे तो आते ही हैं। हमारा प्राइमरी एम इज़ समथिंग एल्स, कि पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे है, पीपल आर नॉट वाइज इन दिस फील्ड, उनको पता नहीं है। ऑफ कोर्स कोर्सेज हो रहे हैं, बट वी थिंक कि उस प्रोफेशनल लेवल पर जाकर नहीं हो रहे हैं जिस पे होने चाहिए और वो स्किल्स मिलनी चाहिए, एंड बट एवरीबॉडी इज़ डूइंग समथिंग, और गवर्नमेंट भी करना चाहती है, लेकिन रिसोर्सेज और चीज़ें, हम इसको एज अ प्रोफेशनल अवेयरनेस और इसकी गाइडेंस और इसको गली गली में फैलाना चाहते हैं। यू शुड, आपको ये नहीं होना चाहिए कि हमारे पास अब कोई बताने वाला नहीं है जो हमें गाइड ना कर सके। वी वांट टू नो, वी वांट टू मूव टू द डिफरेंट हाईएस्ट लेवल, तो हमें कम एफर्ट्स के साथ कम टाइम में आगे जाना है, तो हमें कोई हाथ पकड़ के बताने वाला हो कि नहीं ये रास्ता नहीं, दूसरा रास्ता लो। सो ये भी हमारी, वी आर फैमिली, मैं जहाँ पे होऊंगा, हमजा भाई जहाँ पे होंगे, विल, हमारी जो फैमिली के बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज हैं, द इंटरनेट इज़ अवेलेबल, हम मिलते रहेंगे वेबिनार्स पे, एंड विल बी देयर फॉर यू, फॉर योर गाइडेंस। क्यों हमजा भाई? डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल इजाज़त दी जाए, एंड थैंक यू टू ऑल some foreigners also, the email came that we want to attend. Thank you for all those outside Pakistan also who requested us and who heard us with great patience, and we used Urdu also because there were certain people from Pakistan who understand Urdu more, but we tried to integrate English also to, so that you should get the concept, and we had made a presentation slides also, so at least you can see what is going on. And thank you very much to all outside Pakistan and all who are in Pakistan. The ISA, the White Hat Nest is yours, every Pakistani, every person, even if somebody outside Pakistan wants to come, it's your nest, come, it's your home. We are here with open heart, we welcome you with open heart to assist you, to guide you, to train you. You want an admission, you don't want an admission, you want to participate in some research, competition, seminar, conference, whatever. Inshallah, by the grace of God, ये level वो आएगा, and inshallah we'll be meeting again. ISA is not ours, it's yours. Think is that simple way. आए जब मर्जी, चाय मिलेगी, उसकी खाएं, चाय पिएं, गप लगाएं. When you want to have गपशप, we have separate time slot for that also. So it's your home, it's your family. Thank you very much to all. Grateful to all. Allah Hafiz. Allah. For more information, contact details are given below.